देखिए आजकल एक फिल्म बहुत चर्चा में है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, और ये एक स्टार स्टडेड फिल्म है। लेकिन इस फिल्म में खास बात मुझे ये लगी कि सितारों के काम की चर्चा तो हो रही है, लेकिन वो एक्टर्स जिन्होंने कमाल का सपोर्ट दिया है उनकी भी चर्चा हो रही है। और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ है मल्लिका चावला, जो अपना डेब्यू भी इस फिल्म से जिन्होंने किया है। बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे, बट सबसे पहले मल्लिका, वार्म वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. I'm so happy to be here and I'm so happy to be talking to you, Nidhi. And I'm very excited to talk to you and through you to a lot of people. एंड आई So एम yeah, श्योर I'm अ very लॉट ऑफ excited. पीपल आर Let's go. एक्साइटेड ऑल्सो मल्लिका, क्योंकि फिल्म देख रहे हैं, लोग देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखी, आई एम श्योर अभी इंटरव्यू में आप थोड़ी और उसकी पब्लिसिटी कर लेना तो और ज्यादा लोग बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बट सबसे पहले बिल्कुल. यार, कंग्रेचुलेशंस ऑन द डेब्यू, हाउ डज इट फील? It feels great, and I mean, I count myself very grateful and very lucky because the way this film has been made and the kind of team I got and the kind of people who I got to work around for a debut. It's I'm very grateful. I'm very lucky. Also, the response has been so nice. Like the response to the film has been so nice. But when my messages are filled with people saying that, oh, I spotted you, and then like we saw you and it was really nice, and it was very cool to see you on screen. So it's just very nice. It's a good feeling. आई एम I'm श्योर just really absorbing it all in. इट्स लाइक अ ड्रीम डेब्यू। It is a dream. I mean, it's a dharma debut. Like a lot of people dream about this, and I'm very grateful for it. So राइट राइट राइट। अच्छा, बट ये yeah, बताओ मुझे, आप जैसे लोग फिल्म को तो पसंद कर रहे हैं, बट एज आई सेड, आपका काम लोग पसंद कर रहे हैं, और आपने कहा योर डीएम्स आर आल्सो फ्लडेड। सो फर्स्ट टेल मी, yeah. फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन कैसे रहा? बिकॉज ये वो लोग होते हैं ना जो अक्सर कहते हैं, मतलब वो उतना वैल्यू नहीं करेंगे हमें कि हमारा आप उनके लिए, तो आप मल्लिका Yeah. ही होंगी ना। लेकिन जब हाँ पर्दे जी, पे हाँ उन्होंने जी. आपको देखा, सो एनी एनी स्पेशल रिएक्शन? So the interesting thing is कि मेरे मम्मी डैडी यहाँ नहीं रहते हैं, वो कनाडा में रहते हैं. अच्छा। But the good thing is, and they couldn't fly down because of their work stuff. But the good thing is that this was a global release. तो ये वहाँ वैंकूवर में भी रिलीज हुई थी. तो इन्होंने ये फिल्म वहाँ भी देखी. क्योंकि वो उन्होंने फिल्म वहाँ देखी अपने दोस्तों के साथ. So I think that was a very proud moment, especially for आई my एम श्योर। dad. It was a very proud, and my dad is quite a critique. Like he's very happy that I'm in the film, but he's not like इतना नहीं कि वो सिर्फ तारीफ करेंगे, वो भी बोलेंगे कि ये ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा करना चाहिए था. अच्छा। But I obviously, and that is obviously welcome. He's my father, and so my family and my friends who also I am very blessed to have an amazing set of friends because not only did they you know appreciate it and hype me up, they celebrated it. There was a friend who made like hosted an entire party, a surprise party for me and everything. So I'm very blessed. So मेरे दोस्त काफी अच्छे हैं, मैं लकी हूँ उस हिसाब से भी. टच वुड। और सबको अच्छा लगा, सबको इस बात की खुशी मिली कि जहां से मैंने शुरू किया और अब ये भी करना. और and I have a long way to go right now. Like this is हम्म। just the beginning. यस। So they're just very I have a very supportive group of people around me. तो So ऐसा हुआ क्या yeah. वैंकूवर में छापरा साहब ने ऐसे बोला हो जोर जोर से, जी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है? I'm pretty sure he said that because and he's that kind of a father. I'm Punjabi, so he's a हम्म। very Punjabi in the sense he will not tell me the whole thing that how excited he is, but I'm pretty sure in front of his friends he's gone like बस that's ऐसा my टी कुड़ी daughter है। and they yeah exactly. But अपने घर पे वो ऐसे he tries to play it cool कि ठीक ही है. अब वो That's a ग्राउंडेड भी Punjabi रखना चाह father. रहे होंगे ना, कि ऐसा ना हो मैं वो इतनी ग्राउंड तारीफ और कर रखना दूं। भी चाहिए. Yeah, but राइट। I need that and I'm very grateful because अगर वो नहीं grounded रखेंगे तो कौन रखेगा. And जितना you go ahead you'll realize how important it is कि हम grounded रहे. करेक्ट करेक्ट। बट हाउ Yeah. डिड द फिल्म हैपन? ऑफ कोर्स ये ड्रीम डेब्यू हुआ, बट हाउ डिड द ड्रीम Hmm. डेब्यू फॉल ऑन योर लैप? So it is very interesting because before this, my only thing that I've done in cinema of sorts is this show called Karma Calling. Karma Calling एक रुचि नारायण ने बनाया, वो डायरेक्टर थी हमारी हॉटस्टार के लिए. And वो भी ऐसे ही ensemble cast था. Like there was Ravi Tandon in it, there was Namrata Sheth in it, so it was an ensemble cast. But वो एक इंग्लिश शो का रीमेक है. और उस शो में एक कैरेक्टर है जो सीजन 1 के एंड में इंट्रोड्यूस होता है. तो मेरी कास्टिंग बहुत लेट हुई थी क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर था वो सीजन 1 के लास्ट के 15 मिनट में इंट्रोड्यूस हुआ था. अच्छा। एंड एंड इट्स अ बिग एपिसोडिक काइंड ऑफ शो जो सारे एपिसोड एक साथ आए थे. तो शशांक खेतान जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कर्मा कॉलिंग देखा
और उन्होंने, और मेरा पार्ट कर्मा कॉलिंग में सिर्फ 10-15 मिनट का ही था, बिकॉज सीजन 2 में मेरा पार्ट बड़ा होने वाला था, बिकॉज माई कैरेक्टर गेट्स इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ सीजन. तो एंड शशांक had seen me socially and I had also tested for बेधड़क, जो एक पहले फिल्म बनाने वाले थे जो अभी नहीं बना रहे वो, तो उनमें एक छोटे से कैरेक्टर के लिए मैंने किया था. एंड जब वो शशांक ने देखी कर्मा कॉलिंग, ही ओनली टोल्ड मी कि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि आप कैसे, कि आप एक्चुअली एक्टिंग करते हो या वर्किंग एक्टर हो. मुझे आपकी वो कर्मा कॉलिंग देख के याद आया कि हाँ ये लड़की तो मुझे पता है. एंड दैट्स व्हेन ही कॉल्ड मी and then we had a couple of readings, but Shashank was very sure. Like जब वो पहली मीटिंग भी उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि जब मैंने आपको देखा, मुझे आपसे मिलना था, ये देखना था कि हमारा you have to have a chemistry with your director, जिस तरह से वो डायरेक्ट करेंगे. And he's like, if it all goes well, he was very certain. And that's the one thing about Shashank. He is a very sure person. उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए, and he's very clear and sure about it. And he doesn't, there's no back and forth, ये वो. He's very to the point, and that's how Sari Sanskari happened. Right. और And अच्छा I ये love जो, that because, हाँ प्लीज. and I love that because one of the most important takeaways from this whole situation was कि मेरा कर्मा कॉलिंग में पार्ट सिर्फ 5-10 minutes का. So all the actors, it's not, you don't know what screen time will get you what visibility. करेक्ट. तो इसीलिए मुझे ये बात बहुत खास लगती है कि सिर्फ उसमें से वो मैटर कर गया इतना कि the right person has to see it. So Yeah, and also, if you think of it in retrospect, 5 minute का रोल था, but the title was Karma Calling. So your Karma Calling was a film like this. exactly. है ना? exactly. See, there you अच्छा. go, you get it. अच्छा, ये जो I कैरेक्टर है love it. निशा, इसकी स्पिरिटेड हाँ पर्सनालिटी जी. के लिए बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है. सो हाउ मच ऑफ यू डिड यू पुट इन निशा, एंड हाउ मच ऑफ यू आपने सोचा यार ऐसी तो मैं नहीं हूँ? एक्चुअली फनीली मैंने अपना बहुत कुछ डाला है निशा में. निशा बिल्कुल मेरी तरह है. अच्छा. इट्स अनरियल. एंड ये बात शशांक ने भी बोली थी. शशांक, व्हेन यू आर राइटिंग द कैरेक्टर, ही इज लाइक, आई वांट यू टू ब्रिंग आउट यू इन द कैरेक्टर. एंड वो थोड़ा बहुत मुझे सोशली जानते थे, तो उन्हें पता कि मैं सोशली कैसे ऑपरेट करती हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसे है. और उन्होंने यही बोला था कि स्पेशली जब आप नया कुछ स्टार्ट भी एज अ करियर, व्हेन यू आर एट इनिशियल स्टेज, तो आपको अगर ऐसा कोई रोल मिले जो आपके दिल के और आपकी पर्सनालिटी के बहुत करीब है, वो अच्छी चीज होती है. आई मीन, a lot of us want to do challenging roles, but ये भी अच्छी चीज है because then I can bring depth to it, क्योंकि मुझे nuances, the softer nuances पता है उसके. तो निशा is a lot like myself. मैं हूँ वो where I'm the I'll crack a joke जब at an inappropriate time. Like I don't know if you notice or if you watch the movie, whoever's watched it, उनको लगेगा वो भी, जब सबको एक सीन है जब सबको वो बोल रहे हैं कि आप awkward तो नहीं हो, एंड सब बोल रहे हैं हम awkward नहीं हो, एंड निशा बोलती है आई एम ऑलवेज awkward, because it is true. निशा, it is me. मैं ऐसे ही गलत टाइम पे गलत जोक मारती हूँ. एंड मेरा, और निशा ऐसी भी है कि अगर जैसे बंटू और कुक्कू के साथ उसकी केमिस्ट्री चल रही थी, आई एंजॉय दैट. आई एम नॉट, बिकॉज आई एम नॉट रिजर्व्ड एज अ पर्सन. आई एम लाइक एक्सट्रोवर्ट. इट्स लाइक, आई थिंक द डे आई वाज बोर्न आई वाज टॉकिंग टू पीपल. I'm not, I wake up and I'm like, who can I talk to? I can talk to anybody. So a lot of Nisha is me. राइट. अच्छा, तो आपको आपका कैरेक्टर Yeah. प्ले करने में तो डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा, बिकॉज इतने काफी हाँ आपको सिमिलैरिटीज मिली. बट द फिल्म इन जी. इटसेल्फ ऑल्सो इज, देखने से ऐसा लगता है कि शूट करते वक्त भी जो एक्टर्स इन्होंने काफी एंजॉय किया होगा. सो गिव मी सम इनसाइड बीटीएस जो हम ऑब्वियसली इस फिल्म में नहीं देख रहे हैं. आपको ये यकीन नहीं होगा कि जितना मजा आपने स्क्रीन पे देखा है उससे ज्यादा, आई एम सॉरी टू से फॉर द ऑडियंस, बिकॉज उससे ज्यादा मजा हमें शूट करने में आया है. हम, ये मजाक भी नहीं है. हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, सब द होल कास्ट. हम उस ग्रुप का नाम स्टेकेशन है. हम, ऐसा लग रहा था कि हम एक वेकेशन पे गए और वहां पे हमने फिल्म बना दी है, बिकॉज हम 1 महीने राफल्स उदयपुर में थे. एंड वो क्या होता है ना, जब आप, पता है, आप जैसे वेकेशन पे जाते हो अपनी बड़ी फैमिली के साथ, तो आप ब्रेकफास्ट भी एक साथ कर रहे हो, लंच डिनर, हम लोग वर्कआउट भी एक साथ करते थे. और वहां पे बहुत क्यूट चीज ये थी कि राफल्स बहुत बड़ा है और वहां पे एक जिम है, एक लाइक नॉर्मल साइज जिम है. और बिकॉज हम सब एक साथ करते थे, एक टाइम भी उसे पूरी कास्ट एक वर्कआउट कर रही है. अच्छा. एंड हमारे में तो रोहित भी है, सानिया भी है, जो तो इतना वर्कआउट करते हैं. रोहित तो सुबह भी वर्कआउट कर रहे थे और शाम को भी वर्कआउट कर रहे थे. तो वो था, हम सब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ. और शशांक, आई चांट ऑल्सो. मैं नम्यो रंगे को चांट भी करती हूँ. शशांक ऑल्सो चांट्स. वी वर चांटिंग टुगेदर. एंड देन एट सम पॉइंट सबकी फैमिलीज भी आई थी, क्योंकि जब 2-3 हफ्ते
हो गए थे शूट करते वक्त। तो वरुण की फैमिली, शशांक की फैमिली, उनकी डॉटर्स सब आए थे। सो इट वाज अ पूरा फैमिली वेकेशन, एंड वो फैमिली वेकेशन के साथ भी शॉट द फिल्म, एंड इट वाज सो नाइस। एंड आई थिंक आई गॉट वेरी लकी बिकॉज it was a very wholesome family vibe on the set. हम्म। Everybody was looking out. It also gave a lot of actors to have good off-screen chemistry because it was my first time with all of them, right? राइट। But because वो सब इतने warm और इतने अच्छे कि वो chemistry बस बन ही गई क्योंकि हमारी ऑफ स्क्रीन इतनी अच्छी थी। और जो भी आपको ऑन स्क्रीन फनी लगा, अगर आपको मनीष पॉल फनी लगे, आपको अभिनव फनी लगे, वो ऑफ स्क्रीन भी उतने ही फनी है। तो आप सोचिए कि उनके साथ पूरा एक महीना पूरा रात से दिन काटना, तो हमें इट वाज आउटस्टैंडिंग। आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ देयर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेकिंग ऑफ द फिल्म की भी आपको एक फिल्म बनानी चाहिए थी, कि ये पीछे वाली मस्ती भी हम आई नो देखते 100%, and there is so much content. I think they should release it. I mean, हैं। मेरे भी सोशल मीडिया पे मैं करती रहती हूँ इधर इधर उधर रिलीज, बट बट उनके पास जितना मुझे पता है, इट कैन मेक अ होल वो सनी संस्कारी का बी रोल मूवी बन सकता राइट। है। राइट। अच्छा, अभी मलिका क्या या होगी कि फिल्म लोगों ने देखी है, लोग निशा के कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब कोई नया एक्टर आता है, पीपल वांट टू नो मोर अबाउट देम, कौन है, अच्छा इनका नाम क्या, मलिका है। अभी गूगल में सर्च करना चाहेंगे आपके बारे में, बट ज्यादा कुछ है जी नहीं। सो प्लीज थोड़ा सा फॉर माय जी। ऑडियंस, टेल मी अ लिटिल अबाउट यू, अबाउट योर बैकग्राउंड एंड हाउ फाइनली एक्टिंग हैपेंड। या मेरा ज्यादा कुछ एक पहली बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं काफी प्राइवेट रखती हूँ अपने जो भी, तो मैं ऐसी बात है कि कई लोग ये सब कहते हैं आपके दोस्त वगैरह, मेरे कुछ ऐसे अक्वेंटेंस भी हैं कि जब फिल्म आ गई उन्होंने उन्हें तब पता लगा कि मुझे दैट आई एम अ फुल टाइम एक्टर, या मुझे एक्टर, एंड देयर लाइक, एंड सो दैट्स जस्ट हाउ प्राइवेट आई एम अबाउट थिंग्स। लाइक अगर मैं बात करती हूँ काम की बात भी करती हूँ, बट मुझे ऐसा है कि काम की बात काम के लोगों से, जो मेरे इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे, उनको पता होना चाहिए। बट it is a big part of me, but your job is not what defines you in time. Your job is a part of you, and I like to keep it that way. Although it's very important to me, but it is still a part of me. मेरे बारे में, और मैं बॉम्बे में कुछ साल पहले आई थी, बट पहले बिकॉज मैं राइटर भी रही हूँ, आई यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन, सो आई वाज अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म दैट यू आर डूइंग। So I used to write for magazines, but that's because I was always keen on writing. मुझे फिल्म मेकिंग का हमेशा हमेशा से शौक था। मुझे हमेशा था कि मैं फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में रहूं, चाहे वो कैमरा के आगे है या वो कैमरा के पीछे है, क्योंकि मुझे आई लव स्टोरी टेलिंग। मुझे बहुत शौक है, आई थिंक द मोस्ट सेटिस्फैक्शन आई गेट इन माय लाइफ इज थ्रू स्टोरी टेलिंग। एंड मेरी फैमिली, मैंने जैसे बताया, यहाँ इंडिया में नहीं है, और मैंने सिर्फ 2 साल पहले ही शुरू किया कि आई एक्टिवली गो आउट एंड ऑडिशन फॉर रोल्स इन द इंडस्ट्री। एंड मेरा कर्मा कॉलिंग आई शॉट इन 2021, एंड उसके बाद अब मैंने ये शूट किया सारी संस्कारी पिछले साल। तो मैं काफी नई हूँ, और मेरे बारे में और जानने के लिए ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं और लोगों को बताऊं कि मैं कहाँ से आई हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, मैं एक्टर क्यों बनी, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तब से मुझे मुझे एक्टर नहीं बनना था, मुझे फ्रेंड्स चाहिए थे। और इसका इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने बहुत स्कूल मूव किया, मेरे एटलीस्ट 14 या 15 स्कूल रहे हैं, ओ। क्योंकि मेरे डैड का प्रोफेशन ऐसा था हॉस्पिटैलिटी में कि मैंने इतने, तो हर 2 साल में मैं स्कूल मूव कर रही थी। तो जब मैं 10-11 साल की थी, मुझे ये समझ आया कि आई ट्राई टू थिंक ऑफ इट कि मेरे दोस्त इतने इजीली तो नहीं बनेंगे हर जगह जाके। तो अगर आप सोचो, हर स्कूल में 4 क्लब होते हैं, या तो एक थिएटर, एक डांस, एक म्यूजिक और एक स्पोर्ट्स। ये हर स्कूल में, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, ये 4 क्लब मिलेंगे उस स्कूल में। तो मेरे 10 साल ने ऐसे दिमाग लगाया कि अगर मुझे दोस्त बनाने तो इनमें से एक क्लब में जाना पड़ेगा। तो उसमें आई वाज लाइक स्पोर्ट्स तो और अभी नहीं होगा मेरे से। एंड आई वाज लाइक, एंड आई वाजंट वेरी गुड एट सिंगिंग, आई एम वेरी म्यूजिकली इंक्लाइंड, बट आई वाजंट वेरी गुड एट सिंगिंग। एंड देन आई पिक्ड, and a 10-year-old me, the child baby me, took theater. And in the process, and then over like 8 years after that in high school, I fell in love with acting. And that's why, but the fact that I came in this direction was because I wanted to make friends. And then somehow I fell in love with acting. I fell in love with the idea of filmmaking. And here I am today. राइट। बट यार मतलब वही है Yeah. कि अब एज एन एक्टर एक होता है
even if you don't want it, एक social responsibility to react with your fans, to Yeah, उनके questions होते 100%. हैं, and obviously they want to know more about you. So you're open to it now? I'm 100% open to it. Like, because I also thought, so I'm also a person who thinks that I will be, and everybody should have their opinions, and because journey is about everything. I just needed to have a platform to do so. अगर मैंने खुद कुछ नहीं किया तो मैं क्यों preach करूँ किसी को कि क्या करना चाहिए, ये Right. करना चाहिए. So if I'm doing something, अभी भी whatever response I can give is out of my personal knowledge. कि मैंने आज देखो मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरे लिए ये सब चला चला है, काम किया है, ऐसी अप्रोच काम करी है. इसके बाद जो है मुझे वो जाके I can start telling people. मैं Right. यहाँ होके ये नहीं बताऊंगी कि वहां पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए नाउ आई एम वेरी ओपन टू अ पॉइंट कि देखो मेरी एक फिल्म आई है, मेरे ये सब प्रोसेस था और ये काम किया है. जब अगली फिल्म आएगी उसकी बात करने लग जाऊंगी, बट तब तक मैं सिर्फ ऐसे रहूंगी. राइट, राइट, राइट. अच्छा, जैसे 10 साल की मल्लिका ने ये डिसाइड किया था क्योंकि दोस्त बनाने हैं, तो चलो थिएटर वाला जो क्लब है वो ज्वाइन कर लेते हैं. एंड जस्ट गॉट यू हियर एज एन एक्ट्रेस ऑन योर सेकंड प्रोजेक्ट टचवुड, एंड मे यू हैव अ लॉन्ग 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 जर्नी. लेकिन वो होता है ना, ग्रोइंग अप, जब आप मैं एक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे भी कुछ एक्टर्स हैं जो इंस्पिरेशन हैं, जिनको देख के हम बड़े हुए हैं. हम्म. सो ग्रोइंग हाँ. अप, हु वर द पीपल यू वर लुकिंग अप टू? In the Hindi film industry growing up, I was looking at Kalki. I've always been such a massive admirer, not even like fan is one thing, but admirer of Kalki's work, Kalki Kochlin's work, because unki she was very young when she was doing roles in like Devdi and all of that, and and you can always tell that the energy and just the aura that she brings to a screen. एंड वो मुझे जब मैंने एक्टिंग सीखनी शुरू करी और जो थिएटर क्लब में और बाद भी, आपको ये पता लगेगा कि जितनी रिचनेस वो सिर्फ स्क्रीन पे आने से करती हैं, वो बाय चांस नहीं होता. वो years and years का दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग योर स्किल सेट. क्योंकि आपको फील हो जाएगा अगर आज कोई एक मैं स्क्रीन पे आई हूँ, क्योंकि मैं आई एम ग्राउंडेड इनफ टू नो दैट कल की skill set and her work she's put is there right now and I have a long way to go. So agar aap, but when you bring somebody like Kalki to the screen and you feel nuances of that, so Kalki has inspired me, and then there is Irfan Khan who inspired me. Later Irfan Khan, there is so much honesty in their acting. See, Right. we all like things that come with acting, right? Like कि oh चलो film बन गई है, it's to be celebrated. But at the end of the day, हम मैं उसले actor नहीं हूँ. That is great. I'm very, very, very grateful for everything that comes my way, whether it's up people congratulating me, celebrating me. But why you act is because you love the craft. So Right. when you look at a Kalki, or when you look at an Irfan Khan, or when you look at a Nawazuddin Siddiqui, or when you look at Nasir sir and Ratna ma'am, these are the artists. Like in my eyes, like these are the people I look up to. Right, So right, right. And I yeah. must say you have a क्लासी चॉइस, राइट? और आई थिंक आप वही सेट ऑफ एक्टर्स को ज्वाइन करना भी चाह रही हैं कि कल को अगर आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग पूछें किसी Yeah. यंग एस्पायरिंग एक्ट्रेस से, तो वो मल्लिका छाबड़ा का नाम लें कि भाई उनके वर्क को मैंने फॉलो किया है. सो लेट्स थ्रो इट आउट इन द यूनिवर्स, मल्लिका, एंड Yes, मे यू I गेट believe अ in लॉट ऑफ manifesting. सक्सेस. या Thank वैसे you भी so आप much. Thank you क्योंकि so much. चैंट करते हो, सो मैनिफेस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट. सो Very important. I'm very spiritual like that. And your words hold power. Everything you say to yourself or out in the universe, it has power that you can't imagine it has. Like एग्जैक्टली. and you can ask anybody, like anybody in the industry, in your industry, anybody, they will tell you that words matter so much. करेक्ट, करेक्ट. आई बिलीव इन इट Yeah. माई सेल्फ. तो चलो मैनिफेस्ट करते हैं Yeah, साथ में yeah. कि आप ढेर I'm सारा sure you काम कर believe, रहे हो, yeah. अच्छा काम कर रहे हो, और पीपल आर लविंग यू फॉर वट एवर यूर डूइंग, एंड विश यू ग्रेट सक्सेस एंड ऑफ कोर्स ग्रेट हेल्थ Thank विद you दैट. so much. एंड थैंक यू सो मच Thank फॉर you so टॉकिंग टू मी, much. मलिका. Thank you so much. And you're one of the first people who have spoken to about my life because, like you said, I'm so off the radar. And thank you for being that first person. You were such a lovely host to me. Thank you थैंक यू so सो much. It was मच, माई great प्लेजर. speaking to हैव अ you. ग्रेट डे. Thank you. Bye. You बाय. too.